Hello, Assalamu alaikum and welcome to mathematics class for standard 7, chapter 7, congruence of triangles, recapitulation. Students, what you're going to learn from this video? From this video, in a very short time, you're going to recap the whole chapter, that is congruence of triangles. So let us begin. Students, as you can see here, the congruence can be identified by the figures which are given to you, and some of the identical marks are given to you. Then you may identify that the triangles are congruent and by which congruence test they are congruent. Now, as you could see in this figure, angle A is congruent to angle X of another triangle. Angle B is congruent to angle Y, the another triangle. And one triangle's angle C is congruent to the another triangle's angle Z. Now all the three angles are being made congruent, and the identical sign of the side, that is segment AB, which is having 3 marks, is congruent with the segment XY of another triangle which is having identical 3 marks on the segment. Segment AC with the identical mark 1 is congruent to XZ with the congruent sign, that is 1 identical mark. In the similar manner, segment BC with 2 identical marks is congruent with the segment YZ of another triangle. Right? So we can say that all the 3 angles of one triangle and all the 3 segments of that same triangle is congruent to the 3 angles and 3 segments of another triangle. Now we have to name that both the triangles are congruent. So we will say triangle ABC is congruent to triangle XYZ. So you students, as you could see this, that if you know that 3 pairs of corresponding angles are congruent and 3 pairs of corresponding sides are congruent, so you knew that the triangles were always congruent. So let's move ahead. Now, naming the triangle is very, very important. Now, as you could see here, one triangle congruent is given to another triangle. The triangle name is BDF. And it is congruent to another triangle, the KCA. Then you have to just remember that first letter B is corresponding to the first letter K of another triangle. Second letter D. So this letter is nothing but an angle. And what is B? B is an angle. So B angle is congruent to angle K. D is congruent to C and F is congruent to A. So looking toward this figure, looking toward these names or these letters, we can draw the figure like this. You could see the figures are given here, right? So now here the figures are given. See, okay. Now look at this. So here angle A is marked with F. Could you see? With 1 identical mark. B is having 3 identical sign which is actually marked with K, and D is having double identical angle sign which is marked with angle C. Similarly, BD will be equal to KC. That is, first 2 letters will be congruent to first 2 letters of another triangle. So this is how, even if the figure is not given, you can draw the figure if the congruent names are given. So what are the corresponding sides and corresponding angles of these 2 congruent triangles? If it is mentioned like that 2 triangles are congruent, अगर आपको ये दे दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको फिगर नहीं दिया हुआ, आप फिगर देखिए इस तरीके से बना सकते हैं. अब उसकी तमाम कॉन्ग्रुएंट साइड्स और तमाम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आपको लिखने हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम पहले लिखेंगे. So let's side, आप एंगल भी लिख सकते हैं, it is up to you. So let's begin with corresponding sides here. BD is congruent to KC. DF is congruent to AC, or we may write CA. BF is congruent to KA. You may write AK also, no problem. So in this manner, all the 3 segments are being notified. Now let us write down all the angles. Angle B will be congruent to angle K. Angle D will be congruent to angle C, and angle F will be congruent to angle A. So this is how we are going to
write all the corresponding parts of the triangle. Now what are corresponding parts? How many parts does a triangle have? A triangle have 6 parts. That is 6 elements, 3 sides, 3 angles. And we are mentioning all these 3 segments with the other 3 sides, that is of the another triangle, and 3 angle of one triangle with another 3 angle of that same congruent triangle, right? So in this manner we listed all the congruent parts of a congruent triangle. You understood, student? Now let us move ahead. Now could you see, this is identify the corresponding parts. Now here the figure is given to you. You have to identify that which angle is congruent to which angle, which segment is congruent to which segment. See, here the measurements are given, so it is very easy for you to identify, right? Even if measurement is not given, then you may identify with the help of identical marks, which we have seen in the earlier slides, right? Now look here. Here, as you could see, the identical brown color mark G, angle G is congruent to the brown color angle R of another triangle, right? Now you could see the purple double identical sign for angle S is actually congruent to angle K, that is purple double identical angle arc with the other triangle. In the similar manner, you could see blue P having 3 identical sign of arc, right? It is congruent to angle F of 3 identical sign of another triangle. So in this manner, we have written angle G is congruent to angle R, angle S is congruent to angle K, and angle P is congruent to angle F, right? Now let us see how we can write the side. See, 10 centimeter or 10 the identical, here meter, centimeter, nothing is written. So we will say 10 units. See the segment GS, it is having 10 units. So it is congruent to KR or RK. It is also having 10 units. Look at another GP. It is having 8 units. The segment is of 8 units. So in the next triangle which is corresponding, where 8 is written, that is FR. You may write RF also, no problem. Right? So as you write blue with red, in the similar manner, they are giving you the corresponding parts naming also. What is the third side segment? See, it is PS. Right? PS is of 5 units. P is blue, S is purple. So here also we are going to write FK. F is blue and K is purple. So the way you select writing, it should be similar. So order of writing segments is also important. Order of writing the name of the congruent triangle is also very important. So as you move for the first one, you have to move for the second one. You understood, student? So in this manner, we have written identified, that means we have actually notified them that yes, these parts are congruent to these parts and these angles are congruent to these angles. Now let us move ahead. Now as you could see, students, the 2 triangles are congruent here. Question A is you have to identify all the corresponding congruent parts of this triangle, and then you have to write that according to which congruence the 2 triangles are congruent, right? So let us start writing now. For questions A solution, we are going to write, see here first of all angles are written. So there is no issue if you are going to write corresponding sides earlier or corresponding angles earlier. It is totally up to you. Okay, you may start writing angles first and then segments. And if you wish to write segments first and then angles, then also it is okay, no issue. Okay, so all the corresponding angles here written first. Angle A is congruent to angle F. Angle B is congruent to angle D. Angle C is congruent to angle E. Now let us write down the corresponding sides. Segment AB is congruent to segment FD. Segment BC is congruent to segment DE. Segment AC is congruent to segment FE. So all the 6 elements of the triangles we have mentioned here. Now we have to answer that according to which congruent segment we can prove it. See, we can prove all the congruence tests. Now how many congruent tests you know? Okay, now list the letters in the triangle's name so that the corresponding angle matches. So one possible congruent statement is. So how we are going to write the corresponding congruent statement का मतलब ये होता है कि आप अब इस triangle का name कैसे लिखेंगे.
तो देखिए, अगर आपने यहाँ एंगल की तरफ ध्यान दिया हो तो इस एंगल्स की तरफ ध्यान दीजिए, राइट। आई एम टेलिंग अबाउट दिस वन, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो तीन है ना, ये साथ में लिखे हुए हैं, तो वी कैन राइट ए बी सी, देखिए यहाँ पर है ना। उसी तरह एंगल एफ, एंगल डी और एंगल ई, तो हम लोग यहाँ पर एफ डी ई स्टेटमेंट, सॉरी एफ डी ई लिख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप नेम लिख सकते हो। तो अगर आपने एंगल्स लिखना आ गया है आपको कि एंगल ए किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल से वो करस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे तो सीक्वेंस आया है ए बी सी एक ट्राइंगल का, और दूसरे ट्राइंगल का आया है एफ डी ई, तो यही नेम हो जाते हैं एंगल के, ट्राइंगल का नेम यही हो जाएगा। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट के ऊपर ही हम नाम लिखते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप एकदम डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। When naming two congruent triangles, order is very important. ऑर्डर की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर A से स्टार्ट किया हुआ है, A इज इन रेड, B ब्लू और C ग्रीन, तो यानी रेड, ब्लू, ग्रीन के नेम के हिसाब से हम लोगों को देखिए बिल्कुल सेम ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और वो F रेड है, E ब्लू है, D ग्रीन है, और इसी वे में आपको लिखना होगा। सपोज आप ब्लू से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला वाला B हो जाता है, फिर आप ग्रीन लिखिए C, फिर आप रेड लिखिए A, यानी BCA इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल। आप इसी वे में दूसरे ट्राइंगल का भी नेम लिखिए जो कि ब्लू, ग्रीन और रेड में आएगा, यानी EDF। यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? यानी नेमिंग ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनी हाउ कुछ भी लेटर लेकर नहीं लिख सकते। आपको पहला वाला जो भी आप सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो कर रहे हो उसका कॉन्ग्रुएंट का ही लेना होगा, वो जिससे कॉन्ग्रुएंट है वही लेना होगा, और वैसे ही ऑर्डर में आपको नेम करना होगा। अब देखिए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हमने बता दिए, अब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स नीचे लिखे हुए हैं। दैट इज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। आप देख सकते हैं रेड इज कॉन्ग्रुएंट टू रेड, ब्लू इज कॉन्ग्रुएंट टू ब्लू, एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू C। अब सेगमेंट्स की बारी आती है, तो लिखिए, हम सेगमेंट्स लिखते हैं AB दैट इज रेड टू ब्लू, तो यहाँ पर आ जाएगा FE दैट इज रेड टू ब्लू। नाउ वी हैव रिटन BC दैट इज ब्लू टू ग्रीन, सो हम यहाँ लिखेंगे ED दैट इज ब्लू टू ग्रीन। नाउ वी आर राइटिंग AC दैट इज रेड टू ग्रीन, so we are writing FD that is red to green, right? So segments are also mentioned here. So this is how you are going to follow the order very accurately. Okay student, the order is very important. Okay, now let us move ahead. Now our next thing is in the chapter to identify that congruency is there, but by which criterion. Now criterion we have, see how many criterion we have. We have 4 criterion. When all the 3 sides of one triangle is congruent to all the 3 sides of another triangle, so 3 sides are respectively equal, so we say that is by SSS test, that is side 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 test, or side 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 property, or we can say very very important, we have to write like this, side side side, yeah, that is SSS criterion. It is better to use this word instead of test or instead of property. Okay, use the word criterion, that is more accurate word. Now let us move on to the next test, which is to the right side, that is SAS criterion, that is side एंगल साइड। नाउ इस ये वाले प्रॉपर्टी में या ये वाले क्राइटेरियन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है बताए? एंगल जो है ना, एंगल, वो एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में आना चाहिए। दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक साइड आइडेंटिकल मार्क 1 से है और दूसरी साइड आइडेंटिकल मार्क 2 से है, यानी दो एक में 1 डैश किया हुआ है और एक सेगमेंट में 2 डैश किए हुए हैं। तो जो 1 डैश है वो दूसरे ट्राइंगल के 1 डैश से इक्वल है, और जिसमें 2 डैश हैं वो अनदर ट्राइंगल के 2 डैश से इक्वल है। अब ये 1 डैश और 2 डैश के बीच में ही एंगल आना चाहिए, जो कि उन लोगों ने आइडेंटिकल ब्लैक मार्क से किया हुआ है एक आर्क।
है ना। तो ये जो एंगल है ना ये इंक्लूडेड होना चाहिए। इंक्लूडेड का मतलब होता है दो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में आएगा, वो कहीं भी नहीं हो सकता, तो ही हम लोग ये वाला क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं, दैट इज साइड एंगल साइड। द नेक्स्ट वन इज एंगल साइड एंगल। अब ये चीज़ यहाँ पर भी बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए कि दो एंगल्स के जो जॉइनिंग वाली आर्म है, कॉमन आर्म या कॉमन साइड, वही साइड हमें कॉन्ग्रुएंट लेनी होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल वन आर्क, एक आर्क जो है वो एक आर्क से इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा, हम इक्वल भी कह सकते हैं। डबल आइडेंटिकल साइन जो है आर्क की, वो डबल आइडेंटिकल साइन एंगल की जो आर्क है उससे कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। और दोनों एंगल के बीच वाला सेगमेंट ही हमें लेना है, हमें कोई और सेगमेंट दिया होगा तो नहीं चलेगा। हमें अगर एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन का यूज करना है तो दो एंगल के बीच वाली साइड ही हमें लेनी होगी। और देखिए हमें वो एक डैश से बताई भी गई है ना। तो ये वाला क्राइटेरियन है एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। दैट मीन्स two angles and the included side are respectively equal. Respectively equal means one angle is equal with one angle of another triangle. Second angle of one triangle is equal to second angle of another triangle, and the included side of one triangle is equal to included side of another triangle. This is what is respectively का मतलब ये होता है, okay? One is matched with one of both the things. अब आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ क्राइटेरियन पर, जिसका नाम है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरियन। अब राइट एंगल का मतलब होता है इस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और वो हमें एक स्क्वायर बॉक्स से बताया जाता है, यानी स्क्वायर बॉक्स की जो आइडेंटिकल साइन होती है उससे बताया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स है और वो इस स्क्वायर बॉक्स के इससे इक्वल है ना। तो ये 90 डिग्री हुआ। अब एक डैश है एक साइड पर। अब ये 90 डिग्री की जो दो आर्म्स होती है ना, उन दोनों में से कोई भी एक साइड हो सकती है, और जो डबल डैश है वो है हाइपोटेनियस पर, यानी 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में, यानी सामने, एकदम सामने वाली जो सेगमेंट होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हमें हाइपोटेनियस तो इक्वल मिलना ही चाहिए, वो हमें मिलना ही चाहिए। 90 डिग्री गिवन है, हाइपोटेनियस भी हमें गिवन मिलना ही चाहिए। अब दो साइड में से, यानी जो बची हुई दो साइड है, परपेंडिकुलर साइड जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, वो दोनों में से कोई भी एक साइड चलेगी। ओके, यहाँ पे वर्टिकल साइन, स्टैंडिंग साइड हमें बताया गया है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वाली, यानी ये वाली साइन है, सॉरी, ये वाली जो साइड है नीचे वाली, ये वाली, ओके, तो ये अगर होती ना इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट तो भी चलेगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है आपके पास, इंपॉर्टेंट में राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड थ्योरम क्राइटेरियन को प्रूव करना हो तो आपके पास 90 डिग्री और हाइपोटेनियस तो होना ही चाहिए। यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन अहेड। सो हम लोगों ने देखा दैट यहाँ पर आपको ABC एक करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का है DEF, और इसके तमाम एंगल्स और तमाम सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट बताए गए हैं एक दूसरे से। ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, आपको दे दिया गया है। तो आप कौन से मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं? अगर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप ऑल 4 क्राइटेरियन का यूज़ कर सकते हैं। आप SSS क्राइटेरियन से प्रूव कर सकते हैं, आप SAS से प्रूव कर सकते हैं, आप एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, आप एंगल ओके, ये जो लास्ट वाला है ना एंगल, ये हमें नहीं है, हमें राइट एंगल है बेटा, हमें राइट एंगल है, ये लास्ट वाला नहीं है। ओके, सो दिस वन इज नॉट देयर, फाइन, सो लीव इट। हम लोग यहाँ पर सोचेंगे हमारे पास RHS है, ओके, ये वाला नहीं है, ओके, ये वाला नहीं है हमारे पास, इसकी जगह पर क्या है, RHS है। ये आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। ओके, सो व्हाट टेस्ट आर नॉट देयर फॉर अस? सी दिस AAS इज नॉट देयर, देन SSA इज नॉट देयर, आपको दिख रहा है? वेट, SSA क्राइटेरियन हमें कभी नहीं प्रूव करने मिलता और एंगल प्रूव करने नहीं मिलता। ओके, सो अब देखते हैं हमें एंगल क्यों नहीं मिलता। देखिए,
एस एस ए और एंगल 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 हमें क्यों कभी नहीं मिल सकता, ये आपको हायर क्लास में भी नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ हायर क्लास में भी कभी क्राइटेरियन में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला वाला ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 11 है, दिख रही है आपको एक सेगमेंट, और इस दूसरे ट्राइंगल की ये सेगमेंट इक्वल है। ये वाला एंगल देखिए 30 डिग्री है, उसी तरह ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। अब ये वाली साइड देखिए 6 है। इस ट्राइंगल में देखो आपको दो साइड 6 सेंटीमीटर की दिखाई गई है, या 6 यूनिट कह सकते हैं हम लोग, अगर सेंटीमीटर मेंशन नहीं किया है तो देखिए ये वाली जो सेगमेंट है ये 6 है। तो क्या इस ट्राइंगल में ये सेगमेंट भी 6 है? तो यानी हम ये ट्राइंगल को ऐसे भी तो बता सकते हैं, देखिए 6, 11 और 30 डिग्री एंगल का। तो क्या दोनों इक्वल हुए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए? बिल्कुल नहीं। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल लेस देन दिस एंगल है। तो ये कहाँ से कॉन्ग्रुएंट हुए? कॉन्ग्रुएंट सी तो क्या शर्त पर है कि ऑल द 3 एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू अनदर 3 एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये तो प्रूव नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल अक्यूट हो गया है, ये भी अक्यूट ही है, बट इस अक्यूट से ये अक्यूट लेस हो गया है। अंडरस्टूड? सो दिस इज नेवर पॉसिबल। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप नीचे देख सकते हैं एंगल y से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल x से कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल z से कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है ना C, ये R, दोनों को अलग अलग लेटर क्यों दिया गया है? क्यों इसको C कहा गया है, इसको R कहा गया है? क्योंकि हम एक ही जैसे 3 सेम एंगल लेकर अनदर ट्राइंगल बना सकते हैं, लेकिन उनकी साइड छोटी हो जाती है। ये हम बड़ी भी ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये बड़ा है, भले ही इसके ऑल 3 एंगल्स सेम हैं, XYZ, किससे? ये XYZ से एंगल सेम है, लेकिन इनके सेगमेंट की लेंथ सेम नहीं है। सेगमेंट, ये ट्राइंगल के तमाम सेगमेंट्स बड़े होंगे और ये ट्राइंगल के तमाम सेगमेंट्स छोटे लेंथ के होंगे। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? 3 एंगल्स और 3 सेगमेंट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तो ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो देखिए, इसीलिए हम कह सकते हैं 2 ट्राइंगल्स विद द सेम एंगल्स AAA नीड नॉट टू बी सेम, नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम साइज। यानी एंगल भले सेम हो, लेकिन दोनों ट्राइंगल के लेंथ जो है सेगमेंट के वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए हम AAA टेस्ट क्राइटेरियन नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं और आपको सिर्फ कौन सा क्राइटेरियन यूज किया हुआ है वो दिखता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला आइडेंटिकल 1 डैश इज इक्वल टू 1 डैश कॉन्ग्रुएंट हुआ है। ये एक बीच का एंगल है और लास्ट की साइड है, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल फॉल हो रहा है, तो क्राइटेरियन है SAS, है ना। अब यहाँ पर देखिए, एंगल है इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल है इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट, और दोनों एंगल के बीच वाली सेगमेंट इस सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट आ रही है। इसका मतलब एंगल साइड एंगल, यानी ASA क्राइटेरियन से हमने ये प्रूव कर दिया। अब नीचे देखिए, ये वाला फॉल नहीं होता ना, साइड साइड है लेकिन एंगल कोई और है, यानी ये क्राइटेरियन हमारे लिए नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, अब ये देखिए, आइडेंटिकल साइन से दोनों साइन, ये दोनों साइन से इक्वल है, और ये वाली सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट, ऑल सेगमेंट्स आर ओनली गिवन, सो दैट इज साइड 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 क्राइटेरियन से ये भी पॉसिबल हो गया। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स और रीजनिंग है। आपको देखिए क्या क्या साइड इक्वल है आपको दे दिया गया है। कुड यू सी दिस, दैट CE इज कॉन्ग्रुएंट टू ED। ये देखिए, CE is congruent to ED, AE is congruent to EB, AE is congruent to EB, इक्वल है मतलब, है ना, दोनों साइड इक्वल है। अभी ये वाली आइडेंटिकल मार्क हमें नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हमें ये दोनों ट्राइंगल ACE, देखिए A से C
सी से ई, तो ये वाली साइड जो है ये नॉन आइडेंटिकल साइड है ना, तो हमें बिल्कुल उसी तरह नाम करना है, तो बी डी ई आएगा। तो हमें ये दोनों को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर रीजंस लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल है। दो चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन से मिल जाती है, तो हम उनको वन बाय वन लिखते हैं, यानी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। क्या रीज़न लिखेंगे? गिवन है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही अवेलेबल है, तो हम उसके लिए एक सिंपल सा रीज़न देंगे, गिवन। उसी तरह ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी, तो हम उसका सिंपल सा रीज़न देंगे, गिवन। अब यहाँ पर है एंगल सी ई ए, आप देख सकते हो ये वाला एंगल, ये इस एंगल का इस एंगल से ये एंगल और फिर ये एंगल, फिर से बताती हूँ, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं? बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप देख सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आप ये चीज़ बता सकते हो कि हाँ ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गए। अब देखिए दो साइड के बीच वाला एंगल हमने लिया है, यानी द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो कौन से वाले क्राइटेरियन से हमने इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? साइड, एंगल, साइड। So we can say that ACE, we can say that ACE is congruent to BDE by SAS property. You may write property if you want, you may write criterion if you want. So whatever thing you feel better you write down. मैंने जितने भी आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 जब करवाए थे, तो मैंने प्रॉपर्टी का वर्ड का ही यूज़ किया है। सो इफ़ यू वांट यू मे यूज़ दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव अहेड। यहाँ पर और एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कुड सी। यहाँ पर जो है क्या गिवन है? सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। आप आइडेंटिकल मार्क से भी देख सकते हैं, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। क्यों? गिवन। तो हमने ये लिखा ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी और हमने लिख दिया गिवन। अब देखिए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। अगेन ये कहाँ से मिला हमें? गिवन से। सो हमने क्या रीजन लिख दिया? गिवन। अब ये जो ए सी है, ये जो सेगमेंट है, ये इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है। अगर दोनों ही ट्राइंगल में एक साइड है, वो दोनों की ही है, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, तो ऐसी साइड को हम कहते हैं कॉमन साइड। क्या कहते हैं हम? कॉमन साइड। ऐसा एंगल भी आता है, हमें एंगल भी मिल सकता है। ओके, हमें ऐसे एंगल भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पर कॉमन साइड है, तो हमने लिख दिया दिस ए सी इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो हमें कौन से टेस्ट से ये दोनों को प्रूव, देखो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी। तो हमें क्या क्राइटेरियन मिला? हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की? साइड, 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 राइट। सो हम लोग लिखते हैं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी बाय विच प्रॉपर्टी? एस 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 प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? Thank you student for watching the video. I hope you have understood the whole chapter in very short, very accurately. Then also if you have any doubt, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम पार्ट्स के वीडियो लिंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लिंक्स हैं आपको वो सेंड कर देती हूँ मैं। जितने भी पार्ट्स अब तक हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के देखे हैं, वो तमाम वीडियो लिंक्स मैं आपको प्लेलिस्ट की दे देती हूँ। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अवेलेबल, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए देख लीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट पिक्चर्स लिए हैं, डिफरेंट इमेजेस से आपको एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे नेम चेंज हो सकते हैं। देखिए मैथ्स हैं, नेम चेंज हो सकते हैं, फिगर्स चेंज हो सकते हैं, बट द क्राइटेरियंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम। द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स एंड द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, जो भी सेगमेंट्स होते हैं, इन सब की जो मार्किंग्स हैं वो सेम रह सकती है। आप कैसे फिगर को देखते ही पहचान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड लक फॉर योर examination.
स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, डू इट वेल। फिगर्स जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर बनाइएगा स्टूडेंट्स, ओके। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ये वाला वीडियो तो मैं आपको सेंड कर ही रही हूँ, साथ में मैं आपको एक और लिंक सेंड कर रही हूँ जो कि आपका रिपीटेड चैप्टर है इंटीजर्स, उसके रिलेटेड है, तो आप वो सारे इंटीजर्स के देख सकते हैं वीडियोस, ओके स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट आपको आपके PT2 एग्जामिनेशन के लिए। टिल देन, ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे हेड, गुड बाय।